or judicial system is the system of courts which administer the justice in the name of the state. Anyone wants to read that? Judiciary or the judicial system is a system of courts which administers Yes, justice in the name of the state. yes. Right, Sweda. So, we completed meaning of judiciary. All done? Yes, ma'am. Ma'am. Okay. So now we will move on the role of the judiciary. What is the role of the judiciary? Justice. Helps in running a Providing country. Yes, Dipali? Ma'am, to provide Providing justice. Yes, right. Man, Anyone else wants to rules say? and regulations. Yes, right, Helps in Deepshika. maintaining rules and regulations. Yes, yes, right, Deepshika. Okay. So we can divide the role of the judiciary in three parts. How many parts? Three parts. Three parts. Yes, right. We will make a flow chart. Okay? Okay, ma'am. okay. So first part is dispute resolution. And the second is judicial review. And the third is upholding the law
and enforcing fundamental rights. What is the first role of judiciary? Sweda? Dispute resolution, ma'am. Right. And what is the second role of judiciary? Anyone else? जुडिस मैम बहुत छोटा दिख रहा है जुडिस जुडिया मैम कांट टेक Judicia. प्रॉपर्टी Is it visible now? Yes, Sweda? Judicial review, ma'am. Yes, right. And the third? upholding the law and exploring fundamental rights. It's enforcing. Yes, ma'am. Okay, Poojan? Hmm. Okay, so now we completed role of the judiciary. Yes, ma'am. Today we completed meaning and the role of the judiciary. Okay. In our next class, we will do structure of the judiciary. Okay. Okay, ma'am. Thank you, class. Okay. Thank you, ma'am. Yes, okay, Deepali. What is your reflection? सॉरी पैरेलल थोड़ा कम था और शायद मेरी लास्ट की राइटिंग ज्यादा छोटी हो गई. ठीक है. ठीक है. This is a skill you are. Yeah. हेडिंग में जब मैं कैपिटल्स में लिखती हूँ तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो हेडिंग थोड़ी प्रॉपर नहीं है. Okay. Good. This is your reflection. Now, what about the peer group feedback? Ma'am, even I felt Overall सही था, ma'am. छोटा था, बाकी था. Presentation भी अच्छा था, Overall सही. neat भी था, ma'am. एक फ्लो था, एक क्लैरिटी थी. कहीं पे ऐसा Yes, नहीं ma'am. लगा Yes, कि ma'am. बहुत रश में है, या कहीं ऐसा नहीं था कि बहुत स्लो है ना. बहुत सूदिंग था, बहुत Right, रिदम ma'am. में था, क्लियर था मैम सारा. क्लियर था. Yes. बस मैम सबसे फीडबैक. बेस्ट हो सकता था बस अगर वो फॉन्ट थोड़ा बड़ा होता तो. बाकी बहुत मस्त था. ठीक है. एक और यहाँ पे सजेशन है, मेरा फीडबैक है. एज अ टीचर वी शुड नॉट प्ले विद द चॉक इन बिटवीन टीचिंग. यस मैम. राइट. यस मैम. Did you use any color chalk? यस मैम. मैम यहाँ पे जब मैंने लाइन बनाई थी तो मैंने इसमें कलर किया था और अंडरलाइन में कलर किया. पिंक किया चॉक था, स्टार्टिंग में किया था. Good one. Overall good presentation. हम पढ़ाई क्यों करते हैं? मैम सीखने के हम पढ़ाई क्यों लिए, करते हैं? और नॉलेज आगे बढ़ने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए. मैम अपने फ्यूचर को ठीक करने के लिए. उससे क्या होगा अगर हम पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा? हमारा नॉलेज इम्प्रूव होगा. बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करने के लिए, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करने के लिए. जब हम पढ़ते हैं, जब नॉलेज को गेन करते हैं, कोई चीजें सीखते हैं, तो हमारा बिहेवियर में मॉडिफाई होता है हमारा बिहेवियर. उससे और बेनिफिट भी है, कुछ फ्यूचर के कुछ प्लान्स हैं सबके.
हाँ जॉब मिलता है। मैम करियर सेटल। वेरी गुड, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ओके मैम। Meaning of unemployment. Unemployment refers to the situation in which an individual is willing and able to work but does not find any work. So unemployment refers to the situation in which an individual is willing and able to work but does not find any work. And unemployment refers to the situation in which an individual is willing and able to work but does not find any work. एक इंसान काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, जिससे पैसे नहीं करना चाहता है, जो वेज रेट चल रहा है उसमें करने को तैयार है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। कैन आई रब दिस? यस मैम। यस मैम। यस मैम। So there are various types of unemployment. The first one is seasonal unemployment, जो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में आता है, जैसे फार्मर्स के लिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आता है। सेकेंड वन इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे काम करने की जरूरत सिर्फ 2 लोगों की है लेकिन वहां पे काम कर रहे हैं 4 लोग। थर्ड वन इज साइक्लिकल। Then we have temporary, and the last one is technological. We have 5 types of unemployment. First one is seasonal, second one is disguised, cyclical, temporary and technological unemployment. Thank you, class. So in the next class, we will discuss in detail about these types. Thank you, ma'am. Deepali, what is your reflection? मैम एक्चुअली मेरा ना बीच में जब मैंने डेफिनेशन लिखी थी तो एक वर्ड छूट गया था, एबल। तो मैंने वो पढ़ते वक्त जब मैं दोबारा रीड कर रही थी उसे, तब मैंने नोटिस किया और मैंने उसे तब लिखा।
फिर दूसरा मैम जब मैं क्लीन कर रही थी तो उसके बाद यहाँ पे नुकसान हो गया, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि पीछे दिखेगा या नहीं। लेकिन और ये वहां पे ऊपर से भी थोड़ा सा फिर जिग जैग ना, जा फिर चुका। नहीं, ये अच्छा टेक्निक यूज किया कि एक ही लाइन में सारे वर्ड्स लिखने की बजाय आपने ऊपर और नीचे की लाइन में लिखे एरो बना के। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट, जो मुझे लगा कि ब्लैक बोर्ड यूज करते समय मेसअप ना हो और एक एक वर्ड क्लियर हो, तो इस तरह से भी हम अरेंज कर सकते हैं। दिस इज द गुड पार्ट। थैंक यू मैम। एनीथिंग एल्स व्हिच यू वांट टू शेयर? नो मैम। Okay. Now moving to the peer group, what is your feedback? मैम उन्होंने जब टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ना, उसे समरी में मेंशन नहीं किया है। हाँ करेक्ट। एंड वन मोर थिंग, डेफिनेशन जो मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जब रीड आउट किया था ना, तो थोड़ा स्पीडली किया था। वो नेटवर्क की वजह से हुआ था। वो हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में ओवरऑल ये लगा था कि दीपाली जरा सा फास्ट है, फिर बाद में वो पेस Okay, एकदम ma'am. नॉर्मल आ गया। यस मैम। मैक्सिमम वो नेटवर्क की वजह से था। इट माइट बी पॉसिबिलिटी, पर हम लोगों को ऐसा लगा था। ओके, एनीथिंग एल्स? मैम ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, कॉन्फिडेंस लेवल भी। कॉन्फिडेंट है दीपाली, पर while writing on the board chalk was making a sound. ओके मैम। मैम एक्चुअली मेरा ना ये बोर्ड ही हिल रहा था, हिल तो रहा है। उसकी भी आवाज आ रही थी, वो ऐसे आवाज हो मैम रही ये थी ना लिखते हुए। ये ना बोर्ड की वजह से हिल रहा है ना, वो प्रॉपर फिट नहीं हो रहा, तो वो मेरा भी होते रहता है आवाज, वो इवन सबका ही वो हो रहा है प्रॉब्लम। तो उस बाकी केस सब में आप सही क्या था कर मैम। सकते हो, जरा Overall सा सही था। एक हाथ से बीच में दीपाली ने ये टेक्निक यूज भी किया था, होल्ड किया हुआ था, है ना, हाँ। ताकि आप प्रॉपरली वहां पे लिख सको। ठीक है, पर क्लासरूम में ये सारे चैलेंजेस नहीं होंगे, पर हाँ हमें इस बात पे डेफिनेटली फोकस करना है कि चॉक इज मेकिंग अ साउंड और नॉट, तो नहीं होना चाहिए। ओके मैम। सही था मैम, बाकी सब